Good morning, students. Previous video we have discussed about the digestion. We have completed all the steps of digestion and we have seen that how complex food which we take in the form of carbohydrate or in the form of starch, whatever food we eat, that is in the form of starch when we are talking about the carbohydrate. Then protein and fats. These are the three main components. And we have seen that how these components get digested by the action of different kind of enzymes. We have also seen the assimilation. Assimilation means that how these simpler form of the food component, they go in different parts of the body and they perform the different functions, right? When we have said about the carbohydrate, we have said that this complex form of carbohydrate, that is starch, converts into glucose. Glucose goes in each and every cell for the production of energy. Clear? ये जो ग्लूकोज है ये हर ईच एंड एवरी सेल में जाता है बॉडी के और एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आता है. बट अलोन ग्लूकोज कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी. इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन. When glucose oxidized or break down with the help of oxygen, then only during this reaction energy produces, and this energy remains stored in the form of ATP. Wherever our body requires energy for all kind of the physical, physiological and mental work, this ATP provides energy. So what we have seen that now oxygen comes into the scene, that now the oxygen is essential. So for oxygen, how we take oxygen, what is the function of oxygen, how this oxygen reaches in each and every cell, all these things we are going to study. The next process of life, we are studying the life process chapter. In this, that is the respiration. Now the next topic is, chapter will remain the same, that is life process, and next topic is respiration. So we are going to discuss about the respiration in today's lecture. Clear? अब आपको ये समझ आ गया होगा कि respiration क्यों होता है? So that we can take in oxygen, atmospheric oxygen we can take in. And what is the function of this oxygen? That this oxygen combines with glucose जो already digestion के बाद हमारे each and every cell में पहुंच चुका है, right? So this oxygen combines with this oxygen is utilized for the breaking down or oxidation of glucose and energy produced. So that is the main aim of respiration. Clear? So now the respiration. So I hope you have understood the definition. First of all, we have to understand the definition of respiration. That respiration is an oxidation reduction reaction. It's a oxidation reduction reaction. Oxidation means the carbon dioxide means we inhale in this process we exhale the carbon dioxide. So glucose oxidized. Oxidation किस चीज का होता है? Glucose का. So let us write down the reaction for the respiration, and this reaction takes place in each and every cell of our body. ठीक है. दिस यू हैव टू रिमेम्बर. अभी तक आप लोग जब छोटे थे और आपसे पूछा जाता था कि रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है या क्या, तो योर आंसर वुड बी लंग्स. लेकिन अभी आप लोग को समझ में आएगा कि लंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में डिफरेंट काइंड के स्टेप्स होंगे और इन स्टेप्स में क्या डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे. वी आर गोइंग टू सी ऑल सच काइंड ऑफ द फैक्ट्स. Right? So let us see the reaction. Reaction which takes place in each and every cell. C6H12O6. This is our glucose. This glucose present in each and every cell. कहाँ से आया ये glucose each and every cell में? After the digestion. Blood circulates
this glucose in each and every cell. This combines with oxygen. We take in oxygen from the atmosphere. Then oxidation of this glucose takes place and carbon dioxide forms. तो इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एंड प्रोडक्ट क्या हो गया? पहला कार्बन डाइऑक्साइड. सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स, राइट? देन ऑक्सीजन रिड्यूस्ड, एज आई टोल्ड यू इट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ग्लूकोज का. रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का इनटू H2O. सो 6 H2O विल फॉर्म एंड ATP रिलीज्ड. ठीक है, ATP released. So this is the overall reaction of respiration, or we can say cellular respiration. Why we are saying cellular respiration? Because this reaction takes place in each and every cell of our body. C6H12O6 glucose combines with oxygen. These are the raw material for the respiration. End products are 6 molecule of carbon dioxide. Means when each molecule of glucose, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहे हैं हर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से. When one molecule of glucose oxidize, we shall get, यहाँ पर हम लोग 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड we shall get 6, यहाँ पर भी हम लोग 6 O2 लिखेंगे. Each molecule of glucose combines with 6 molecule of oxygen. We shall get 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water plus ATP. This ATP combines with, this ATP remains stored as an energy currency. 38 ATP we shall get. Each molecule of glucose gives 38 ATP. कई जगह आपको 36 भी दिखाई देगा, पर when you go in higher classes you would understand कि पूरा 38 ही ATP बनता है, बट 2 ATP प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाता है. इसलिए यू शुड नॉट वरी. अगर आप 38 लिखोगे तो दैट इज द करेक्ट आंसर. 38 ATP ही बनता है. 36 इसलिए लिखा होता है क्योंकि 2 ATP फिर मॉलिक्यूल्स को वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करने के लिए यूज हो जाते हैं. सो दैट you would study in the senior classes, right? So this is the overall reaction. 38 molecules of ATP we shall get. What is ATP? It's an energy currency, adenosine triphosphate. Full form of ATP is adenosine triphosphate. So this is the definition and reaction of respiration. Respiration resembles with that of the combustion, क्योंकि combustion means also whenever any substances, generally the hydrocarbons, when they combine with oxygen, then we call it combustion. जितने भी fuel निकलते हैं या जो energy हमें चाहिए होती है, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं they combine with oxygen and we call it combustion. So these two processes like combustion and respiration, दोनों में ही ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. ठीक है, दोनों में ही ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है कार्बन और वी कैन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ. यहाँ पर भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और कंबशन में भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के साथ मीथेन, इथेन या ब्यूटेन, इनके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन इज अ वेरी very gradual process, slow process in which fuel forms in the form of ATP. लेकिन यहाँ किसी तरह की फायर या स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है. कंबशन में हम लोग देखते हैं फायर प्रोड्यूस होती है, आग के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एज वेल एज द स्मोक लिबरेट्स. लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन में it's a very gradual and slow process of a kind of combustion, we can say, in which fire does not liberate as well as smoke does not form.
Why? Because this process takes place in the water medium. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरा जो हमारी बॉडी के अंदर सेल है वो ड्राई नहीं है, वो क्या है, पूरा जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एक मीडियम में हो रहे हैं, एंड दैट मीडियम इज वाटर. तो ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है सेल में और उसके अंदर ये वाली प्रोसेस हो रही है. एंड द टेम्परेचर इज मॉडरेट. जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उतने कंबस्टिबल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती है रिएक्शन, एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ मॉडरेट टेम्परेचर. तो दैट इज द रीजन दैट हियर काइंड ऑफ द कंबशन, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट वी आर सीइंग दैट हियर वी कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ द फायर और स्मोक. ठीक है. Here we are seeing only this one go reaction, but actually it's not a one go reaction. If we talk about the cellular respiration, which we shall study in detail afterward, we would see that कुछ प्रोसेस, जैसे ग्लूकोज का कुछ प्रोसेस का जो ब्रेकिंग डाउन होता है वो होता है हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में. सो मैनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. जैसे पहले ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फिर पायरुविक एसिड बनता है. एंड दिस पायरुविक एसिड एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. वहां पर क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. फिर से बहुत सारे हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. साइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इस तरह से बहुत सारे हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं. और इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनने के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. What have you understood? That this process is not like this in whatever way we have written over here. ऐसे एक गो में नहीं होती है ये रिएक्शन. This reaction takes place in so many steps and so many byproducts are formed. बहुत सारी साइटोप्लाज्म में आधी रिएक्शन होगी, कुछ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी. हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट फॉर्म्स एटीपी. तो लेकिन एकदम से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होके पहले साइटोप्लाज्म में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर वो बाय प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है. तो यू हैव सीन, यू माइट हैव अंडरस्टूड कि क्यों हम रेस्पिरेशन को कंबशन नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये पूरी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं. मॉडरेट टेम्परेचर पे होती है, वाटर मीडियम में होती है. That is why it's a different kind of reaction. Okay, so you have understood the definition and the reaction and the difference between the combustion and respiration. Like you asked me that in what way we write down the notes. तो again मैंने डाइजेशन में भी बताया था कि कैसे बनाना है आपको नोट्स. यहाँ भी आप लोग हेडिंग डालोगे टॉपिक का रेस्पिरेशन, फिर आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन. देन यू राइट डाउन द रिएक्शन, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. देन यू विल राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द कंबशन एंड रेस्पिरेशन. एंड योर नेक्स्ट पॉइंट वुड कम, दैट इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो लेट अस डिस्कस नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. Types of respiration. Generally there are two kind of respiration. One is aerobic respiration. The process of respiration, it means, जैसे कि हमने उसके डेफिनेशन में पढ़ा था, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन या ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो एरोबिक, as the name denotes, aerobic means in the presence of air. और उस एयर का कौन सा कंपोनेंट रेस्पिरेशन में यूज होता है, दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है. तो when respiration means the breaking down of food takes place in the presence of oxygen, we call it aerobic respiration. Right? The reaction would remain the same. C6H12O6
प्लस 6O2. हियर एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देख रहे हैं एयर, इट मीन्स ऑक्सीजन यूज हुई है. देन वी शैल गेट 6CO2 प्लस 6H2O. एंड अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे देखते हैं तो 38 ATP, और अगर हम किलो कैलोरी में देखेंगे तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. So this is the aerobic respiration. So what we have seen in the aerobic respiration, that complete oxidation of food या glucose takes place with the help of oxygen. 6 molecule of carbon dioxide liberates with by each molecule 1 molecule of glucose, 6 molecule of water, and 673 kilocalorie energy releases. The next type of respiration is anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Anaerobic means, again as the name denotes, जिसमें in the absence of oxygen, breaking down of food takes place in the absence of oxygen. Oxygen use नहीं होती है. Such kind of respiration takes place in certain anaerobic bacteria. जो बैक्टीरिया जैसे जब हम लोग गोबर गैस वाला प्लांट पढ़ते हैं उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. उसके अलावा फर्मेंटेशन होता है जब व्हेनेवर यू फर्मेंट एनीथिंग, इडली का या केक्स का डो वगैरह में फर्मेंट करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं, उसमें यही वाली प्रोसेस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस. ओके, सो हियर वी हैव सीन दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बट विदाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज नॉट बीइंग यूज्ड. तो क्या होगा? C6H12O6. अब ऑक्सीजन यूज नहीं हुई है तो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का और रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का और वाटर बनता है. अब यहां पर सिंस ऑक्सीजन यूज नहीं हुई है तो वाटर भी नहीं बनेगा. राइट, सो इट्स वेरी लॉजिकल. जब आप लोग ये रिएक्शंस लिखते हो तो फिर आप लोगों को कई बार आप लोग यहाँ भी वाटर फॉर्म कर देते हो, है ना. या आपको जनरली सच काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एज वेल एज इन अदर एग्जाम्स, दैट व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन. अगर फर्मेंटेशन के नाम से आता है तो फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक रिएक्शन. यहाँ पर आप फर्मेंटेशन भी, दिस इज फर्मेंटेशन मीन्स एनारोबिक रिएक्शन. फर्मेंट कर रहे हैं ना, तो वो उसमें भी जो रिएक्शन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ना. और ये एरोबिक. तो समटाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. और जो 3-4 ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें 1-2 ऑप्शंस में वाटर भी दिया रहता है. तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो वाटर वाला ऑप्शन तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि वाटर नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि हमें उसका बेसिक कंसेप्ट पता है कि वाटर तब बनता है जब ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है. ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही यूज नहीं हुई है तो वाटर बनने का सवाल नहीं उठता है. तो वाटर वुड नॉट फॉर्म इन द एनारोबिक रिएक्शन. सो व्हाट फॉर्म्स? हियर वी शैल गेट इथाइल एल्कोहल, 2 molecule of C5, C2, H5OH. 2 molecules of ethyl alcohol, C2H5OH. OH is a functional group of alcohol. तो हमें यहाँ पर एल्कोहल मिल रही है. कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, बट ओनली 2 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड and only 2 molecules of ATP. That is 21 kilocalorie. अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो केवल 2 ATP है. यहाँ पर हमको 38 ATP मिले थे. और अगर हम एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा एनर्जी मिली है. हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है 673 किलो कैलोरी, और यहाँ पर कितनी मिली है? ओनली 21 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्म्स.
Here we shall see कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पार्शियल डाइजेशन हो रहा है या पार्शियल ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन नहीं हो रहा है ना, कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट या पार्शियल ब्रेकिंग डाउन है और इसलिए हमको इथाइल अल्कोहल मिल रहा है. So what are the end products of anaerobic respiration? Ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP. An end product of aerobic respiration, that is carbon dioxide, water and ATP. Clear? So you can now write down the difference between aerobic and anaerobic respiration. So when you will write down your next point in your notes, that the types of respiration, you also have to write down the difference between aerobic and anaerobic respiration. You have to make a column. ऐसा एक आप कॉलम बना लीजिए. उस कॉलम में एक साइड पे एरोबिक, एक साइड पे एनारोबिक. सो व्हाट वुड बी योर पॉइंट्स? पहला पॉइंट होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस. यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और पार्शियल ऑक्सीडेशन या ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस. देन यू वुड राइट डाउन अबाउट द एंड प्रोडक्ट्स. दोनों के एंड प्रोडक्ट लिखोगे आप. फिर यहाँ पे आप लिखोगे मोर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी शैल गेट. यहाँ पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर मोर एनर्जी 673 एनर्जी या 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. यहाँ पर आप लिखोगे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वी शैल गेट, दैट इज ओनली 21 किलो कैलोरी एनर्जी वी शैल गेट. So whatever points you can add, so write down the difference between the aerobic and anaerobic respiration. उसके अलावा कभी कभी इस तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी अपनी बॉडी में भी हम लोग महसूस करते हैं. तो उस समय होता है समटाइम्स ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, या कभी कभी हम लोग तेज दौड़ते हुए कहीं जाते हैं तो या एक्सरसाइज करते हैं तो वी फील क्रैम्प इन अवर मसल्स में क्रैम्प आ जाता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कभी कभी कुछ मसल्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो वहां पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन इन द लैक ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है तो वहां पर क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है. तो वो क्या है, लैक्टिक एसिड फॉर्म्स ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और उस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से वी फील क्रैम्प इन अवर मसल. तो इस तरह के क्वेश्चंस आल्सो दे आस्क इन द बोर्ड एग्जाम दैट व्हाई डू वी फील क्रैम्प्स. सो योर आंसर वुड बी दैट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और रिगरस एक्टिविटीज when our muscles or certain cells they do not get sufficient amount of oxygen, then instead of the complete oxidation of carbohydrate, incomplete oxidation takes lactic acid forms in our muscle. यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बना था, वो फर्मेंटेशन में था, ईस्ट में. लेकिन हमारी बॉडी में अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड. एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड वी फील cramp in our muscles. So these are different kind of respiration. Okay. Now next point, all these things you will write down in your note copy. Next we shall study the physiology of digestion. Physiology means how this process takes place. उसके पहले जैसे हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. हाउ दिस ऑक्सीजन कम्स इन अवर बॉडी, ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, लंग्स कैसे काम करते हैं, डायफ्राम का क्या काम है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन वी शैल स्टडी इन 3 steps. फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग. फर्स्ट स्टेप ऑफ respiration या physiology of respiration is breathing.
Breathing means how we take in oxygen which is present in the atmosphere and how we exhale, how the carbon dioxide moves out of our body. These two steps we shall study in the breathing part. उसके पहले जब आपको रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पूछा जाता था इन द जूनियर क्लासेस, यू यूज टू गिव द आंसर दैट टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन. बट नाउ you have to understand it's not respiration, it's only a part of respiration and we call it breathing. इसको सिर्फ breathing बोलेंगे, right? Next step is exchange of gases. Exchange of gases. That how exchange means we are taking in oxygen from the atmosphere and our carbon dioxide which is produced in each and every cell of our body, it has to be collected from the overall body, then it has to come to the lungs and from the lungs it has to expelled out of the body. तो ये पूरी प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए कि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आई है वो किस तरह से ब्लड में डिसॉल्व होती है और कैसे ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है इन ईच एंड एवरी सेल, राइट. फिर हाउ कार्बन डाइऑक्साइड विच लिबरेट्स इन ईच एंड एवरी सेल गेट्स मिक्स्ड विद द ब्लड और फिर कैसे वो लंग्स तक आती है और लंग्स के आने के बाद वी एक्सहेल्ड इट आउट. हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, हीमोग्लोबिन से किस तरह से ऑक्सीजन कंबाइन होती है. सो दीज थिंग्स वी शैल स्टडी इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड थर्ड पार्ट कम्स द सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो अभी हमने एक ओवरऑल इक्वेशन पढ़ी थी या जो अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले, वो एक्चुअल में सेलुलर रेस्पिरेशन है. एज आई टोल्ड यू दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल. तो एक्चुअली वो था सेलुलर रेस्पिरेशन जहां पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा था और एनर्जी विच इज द मेन एम ऑफ द प्रोसेस. रेस्पिरेशन का मेन एम क्या है? एनर्जी, क्योंकि हम ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. तो ग्लूकोज को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ये मेन एम है रेस्पिरेशन का. तो एटीपी का प्रोडक्शन जो हमारे और सारे कामों को करने में यूज होती है. तो ये जो ब्रेकिंग डाउन वाली प्रोसेस मेन प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. तो सेलुलर रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस वुड रिमेन सेम इन द प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. लेकिन जो ब्रीदिंग है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हमको ह्यूमन रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पढ़ना है, क्योंकि नोज है, फिर पूरा यहाँ से ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में कैसे गैस जाती है, लंग्स का क्या फंक्शन है या लंग्स का क्या स्ट्रक्चर है, ये हम सिर्फ ह्यूमन रेस्पिरेशन वाले पार्ट में पढ़ते हैं. इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ये दो पार्ट वी शैल स्टडी आफ्टरवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट द different steps of cellular respiration in the next lecture. Thank you.